Okay, so that is chapter 5, principles of heredity and variation. So that thing, first time, okay, that concept was given by that is Mendel, and after that is called Mendelian genetics. So what Mendel say? Mendel say that all the living organisms they reproduce, okay, and it results ki the offspring it exactly resemble to that parents, the combination of the parents. And first time that thing it was explained by Mendel. See, here, here is the image of the various human races. See, they all are different from each other. See, the skin of these people, the skin of these people, and the skin of these people. We all are different from each other. Why? Because certain genes they are responsible to give this kind of structure. And after then, what is the definition of genetics? What is genetics? It is a branch of biology that deals with heredity as well as variation. What is heredity? If I say heredity means transmission of character from parent to offspring, that is called heredity. What is variation? Variation means whatever the difference we see among the people, okay, with their parents, that is called variation. Now variation it is of two types, okay, या फिर दो चीज की वजह से वेरिएशन आ सकता है. First one is that is called heredity variation. Second one is that is called environmental variation. Now heredity variation means कि जो वेरिएशन हमें आ रहा है, ठीक है, हम अपने भाई बहन से भी अलग दिख रहे हैं, तो वो वेरिएशन जो आ रहा है दैट इज फ्रॉम अवर हेरिडिटी, क्योंकि मम्मी अलग है, पापा अलग है, दे फ्रॉम डिफरेंट फैमिलीज, सो दैट वेरिएशन कम्स फ्रॉम द heredity. And second variation is that is environmental variation. So they are that variation comes from the environmental factor, okay, that variation we acquired. Acquired means कि जो हमें पेरेंट्स से गिफ्ट नहीं मिला है, हमने खुद सीखा है, हमने खुद चेंज किया है, दैट इज कॉल्ड एनवायरमेंटल वेरिएशन. सो वेरिएशन इट इज ऑफ टू टाइप्स. तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट था प्रिंसिपल्स ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन. सो व्हाट इज हेरिडिटी? कि the transmission of character from parent to offspring, that is called heredity. And what is variation? Variation means what are the difference of the like what are the difference among offsprings to, ठीक है, with their parents कि क्या change है और कौन से change pass हो रहा है. And variation it is of two types. Which two type of variations are there? Hereditary, environmental. Hereditary variation and environmental variation. Heredity as well as environmental variation that already we have seen yesterday. After that, कौन से साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है इन द फील्ड ऑफ जेनेटिक्स? सो दैट इज मेंडल, ओके, ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ जेनेटिक्स. और उनका टाइम पीरियड कौन सा था? तो दैट इज 1822 to 1884. He was Australian monk. He belongs to Australia, and he used to do the experiment with hybridization. What is hybridization? Hybridization means कि दो चीज को हमने मिलाया और जो कॉम्बिनेशन बना दैट इज कॉल्ड हाइब्रिड. कि जो चीज है वो सेम नहीं है, इट इज फ्रॉम डिफरेंट पेरेंट, दैट इज कॉल्ड हाइब्रिड. एंड बेसिकली जो उनका काम था इट इज पब्लिश्ड इन द लाइक सोसाइटी पहले, दैट इज नेचर हिस्ट्री ऑफ सोसाइटी ऑफ द ब्रून यहाँ पे. और फर्स्ट टाइम उन्होंने नाम दिया था ट्रांसलेशन ऑफ द कैरेक्टर्स. व्हाट इज द ट्रांसलेशन ऑफ कैरेक्टर्स? मींस द एक्सप्रेशन ऑफ द कैरेक्टर्स. कि when gene they pass to from parent to offspring, तो क्या एक्सप्रेस हो रहा है? तो that thing first time it was expressed or it was like explained by in the nature history of society of the Broome ऑस्ट्रेलिया में. फर्स्ट टाइम उन्होंने ट्राई की थी कि भैया ऐसा भी कुछ होता है कि अगर पेरेंट में है तो उनके बच्चे में दिखेगा, अगर वहां पे नहीं दिखेगा तो नेक्स्ट जनरेशन में दिखेगा. सो दैट थिंग वाज एक्सप्लेन्ड बाय हिम और बिकॉज ऑफ दैट थिंग ही इज कॉल्ड फादर ऑफ जेनेटिक्स. बट ये जो अवार्ड मिला था आफ्टर हिज डेथ, ठीक है, तो मरने के बाद अगर आप या मैं स्वर्ग में या नरक में जाए तो देखना कि भैया वहां पे मेंडल है, तो उनको बताना कि भैया यू आर कॉल्ड द फादर ऑफ जेनेटिक्स, तो बेचारा खुश हो जाएगा. ठीक है, कौन जाने वाला है नरक में और स्वर्ग में? मेरे जैसे नरक में आएंगे मैं और रिकी सारे सब. रिकी आपने दिखा नरक मत जमाना चाहिए. बराबर છે વાત તમારી ટીચર. બરાબર છે ને વાત દીકરા? ચાલો હવે this is the basic information, so I'm going to skip. अगर आपको जानना है तो just take a screenshot
लेकिन it is not as such important, so I'm going to skip this. Finally, मेंडल का काम क्या था? ठीक है, मेंडल का काम ये था कि बेसिकली ही एक्सपेरिमेंट ऑन द पी प्लांट. ओके, और पी प्लांट का साइंटिफिक नेम है दैट इज पाइजम सटाइवम. द साइंटिफिक नेम ऑफ पी प्लांट इज दैट इज पाइजम सटाइवम. इज इट विजिबल? मैंने बोर्ड पे जो लिखा है. Yes. Yes, sir. Yes, teacher. ओके, so during this period, Yes, teacher. yes, दिख रहा है. During this period, he designed experiment on the pea plant. And what is the scientific name of pea plant? That is Pisum sativum. तो ये आपको एग्जाम में आ सकता है कि what is the scientific name of pea plant? That is Pisum sativum. और बेसिकली क्यों वो सक्सेस हुआ था? ठीक है, सक्सेस इस वजह से हुआ था क्योंकि उन्होंने मतलब प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स की हेल्प ली थी. एंड व्हाटएवर द वर्क इट वाज डन बाय मेंडल, वो सब उन्होंने लिखा था. ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो काम उनका मतलब गया. व्हाटएवर ही गॉट द रिजल्ट ही यूज्ड टू राइट इन हिज बुक्स एंड ऑल. और फाइनली उसको इंटरप्रेट किया था किसने? मैथमेटिशियन ने. तो फिर पता चला था कि यस दिस इज द रेशियो, दिस इज द प्रोबेबिलिटी कि ये जो कैरेक्टर आया तो ठीक है क्यों आया. और उसके बाद उनका काम पब्लिश हुआ था कहाँ पे? दैट इज इन सोसाइटी ऑफ ब्रून. और इन 1865 और नाम दिया था ट्रांसलेशन ऑफ द कैरेक्टर्स. ट्रांसलेशन एक्सप्रेशन ऑफ द कैरेक्टर्स. ओके, तो ये सारी चीजें हम देखेंगे आगे. ओके, आफ्टर देन मेंडल के बाद 3 साइंटिस्ट जो थे उन्होंने उनका काम रीडिस्कवर किया था. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रीडिस्कवर? कि ऑलरेडी उन्होंने पहले बताया था, ठीक है, उसके बाद फिर से उसी काम को सही बताया कि नहीं ये इसने जो बोला था मतलब वो सही है. ऐसे बोलते हैं ना जासूसी कि कंफर्मेशन कि भैया ये सही है जो उन्होंने किया था. तो अगेन दे डिड एक्सपेरिमेंट बाय डिफरेंट वेज और फाइनली व्हाटएवर द रिजल्ट इट वाज लाइक जिन मेंडल को मिला था तो सेम रिजल्ट इन 3 साइंटिस्ट को भी मिला था. और फिर जाके पता चला कि मेंडल ने जो बताया था वो सही था, वो बंदा पागल नहीं था मतलब. ठीक है, क्योंकि फर्स्ट टाइम अगर कोई बताता है तो हम क्या समझेंगे कि नहीं हाउ वी कैन सपोर्ट विदाउट एनी प्रूफ. तो दैट 3 साइंटिस्ट दे फाइंड आउट द प्रूफ टू द मेंडल वर्क. तो 3 साइंटिस्ट दैट इज Hugh Correns and Tesselman. They are from the different place like Holland, Germany and Australia. और उन्होंने फर्स्ट टाइम ये बताया था. एंड आफ्टर दैट सबने रिस्पेक्ट दी कि नहीं ये जो काम किया था वो तो हमने जस्ट रीडिस्कवर किया है. मेन जो कंसेप्ट था वो तो किसने किया था? दैट इज बाय मेंडल ओनली. तो ही इज कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स. ठीक है, तो ये काम ये पूछ सकते हैं कि आगे किसने रीडिस्कवर किया था. तो किसने रीडिस्कवर किया था? हु रीडिस्कवर बेटा? Hugo de Very's friends, Correns and Aristotle. Okay, okay. So that 3 scientists rediscovered the work. See, this is a photograph कि कहाँ पे उन्होंने प्रेजेंट किया था and what is पहले ऐसे दिखता था and what is the current situation and that all. After then, अब मेंडल क्यों सक्सेस हुआ था? ओके, मेंडल इस वजह से सक्सेस हुआ था कि एक तो उसने नोट डाउन किया था, सेकेंड उसको लालच नहीं. लालच मतलब कि ड्यूरिंग हिज एक्सपेरिमेंट he focused only on one character. ठीक है, भले ही दूसरे कैरेक्टर पास हो रहे हैं बट उनके ऊपर फोकस नहीं किया था. एग्जाम्पल कि अगर प्लांट की हाइट है तो ही ओनली फोकस्ड ऑन प्लांट हाइट. उन्होंने क्या नहीं किया था? मतलब सीड के कलर पे ध्यान नहीं दिया था, फ्लावर की पोजीशन पे ध्यान नहीं दिया था. सो उनको बोलेंगे मोनो हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट. मतलब एक टाइम एक ही कैरेक्टर को उसको उन्होंने ध्यान में दिया था. हाँ, फिर बाद में 2 भी दिए थे, वो बाद में देखेंगे. लेकिन जो ग्रेट सक्सेस मिली थी कि एट द टाइम ही फोकस्ड ओनली वन कैरेक्टर, उसकी वजह से उनको क्या बोलेंगे? मोनो हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट. आई होप इट्स क्लियर व्हाट इज मोनो हाइब्रिड एंड व्हाट इज डाई हाइब्रिड. व्हाट इज मोनो हाइब्रिड? टीचर मोनो मतलब एक और डाई मतलब दो. On only one character.
ओके फाइन। और दीज आर द 7 कैरेक्टर्स। एक दो बार ये नीट की एग्जाम में आ चुका है कि हाउ मेनी कैरेक्टर्स दैट वाज ऑब्जर्व बाय मेंडल, तो 7 कैरेक्टर्स। ओके, और उसमें से भी हम देखेंगे कि डोमिनेंट किसको बोलेंगे, रिसेसिव किसको बोलेंगे, दैट भी आज ही हम देखेंगे किसको बोलेंगे। तो डोमिनेंट एंड रिसेसिव, तो दैट इज हाइट, प्लांट की हाइट, सीड उसका शेप कैसा था, राउंड और रिंकल्ड, सीड कलर कौन सा था, उसके कोट का कलर कौन सा था, पोड शेप इन આપણે છોટલું કહીએ ને જે છોલે, that is pod shape, pod color, and finally flower position. So basically you observe 7 characters. Okay, अब ये बाद में फिर से मैं आपको पीपीटी में लेके आऊंगी कि डोमिनेंट कौन सा था, रिसेसिव कौन सा था, क्योंकि ये पूछ सकता है इन योर एमसीक्यू कि अगर फ्लावर पोजीशन है तो व्हाट इज द डोमिनेंट एंड व्हाट इज द रिसेसिव, तो दैट वी विल सी लेटर आफ्टर हिज एक्सपेरिमेंट्स. नाउ सी फर्स्ट व्हाट ही ट्राइड. ओके, अभी मैं थोड़ा शेयर निकाल देती हूँ, आई विल राइट ऑन द बोर्ड. ओके, so first experiment हम देखेंगे, that is called law of dominance. Let's see about the first, that is law of dominance. Okay, so that is called law of dominance. We will see the 3 laws. ठीक है, लेकिन जाने से पहले और एक टर्मिनोलॉजी है, वो मैं आपको समझाती हूँ. व्हाट आर द टर्मिनोलॉजीज? फर्स्ट वन इज प्योर. द वर्ड इज प्योर. ये किसको बोलेंगे? ठीक है, तो वो चीज हमें देखनी है. आफ्टर दैट वी विल सी व्हाट इज होमोजाइगस, व्हाट इज हेटेरोजाइगस, what is parent, what is F, that thing we will discuss. तो फर्स्ट वन इज दैट इज प्योर. प्योर का मतलब होता है कि कोई भी चीज हाइब्रिड नहीं है. ठीक है, अकॉर्डिंग टू मेंडल, नॉट अकॉर्डिंग टू मी. अगेन आई रिपीट द वर्ड, अकॉर्डिंग टू मेंडल, नॉट बाय मी. अकॉर्डिंग टू मेंडल कोई भी कैरेक्टर हो तो उसके 2 अल्टरनेटिव्स होते हैं. अगेन आई रिपीट द वर्ड, अकॉर्डिंग टू मेंडल कोई भी अगर कैरेक्टर हो, जीन हो, तो उसके 2 अल्टरनेटिव है. एग्जाम्पल, अगर हाइट है तो टॉल एंड ड्वार्फनेस. ठीक है, सेकंड वन इज कलर है तो येलो या फिर ग्रीन. तो अकॉर्डिंग टू मेंडल देयर आर 2 अल्टरनेटिव्स. ठीक है, तो वो जब नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा तो हाइब्रिड हो सकता है, प्योर हो सकता है. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्योर? प्योर का मतलब है कि देखो 2 अल्टरनेटिव बोले थे. तो अगर मैं हाइट की बात करूं तो कैपिटल टी दैट इज फॉर टॉलनेस, दैट इज स्मॉल टी दैट इज फॉर ड्वार्फनेस और शॉर्टनेस. तो जैसे मैंने आपको बताया कि 2 अल्टरनेटिव फॉर्म, तो ये सिंगल है. अगर मैं इसको और कैपिटल टी लिखूं और स्मॉल टी लिखूं तो ये दोनों सेम है. दिस 2 जीन्स आर सेम. ऐसा नहीं है, इट्स नॉट लाइक दैट वे. इसको हम हाइब्रिड बोलेंगे. ठीक है, क्योंकि कैपिटल टी हाइट ज्यादा है, स्मॉल टी हाइट कम है, तो दैट वी कॉल हाइब्रिड. लेकिन अगर ये दोनों सेम है, आइदर टॉलनेस के लिए सेम और शॉर्टनेस के लिए अगर ये सेम है, तो वी कॉल इट प्योर. सो व्हेनेवर द वर्ड कम्स प्योर, उसका मतलब होता है कि बोथ द जीन्स दे आर सेम. ये हमेशा याद रखना, ना न्यूमेरिकल में भी काम आएगा. सो दैट इज प्योर. व्हाट इज होमोजाइगस? जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी कैरेक्टर के लिए 2 जीन्स होते हैं, तो होमोजाइगस का मतलब होता है बोथ आर सेम. Both are same, so that is called homozygous. What is heterozygous? Heterozygous का मतलब होता है both are not same. So that thing first you need to clear. T का मतलब होता है parent, F का मतलब होता है that is filial, that is filial. और filial का मतलब होता है progeny, or you can say that offspring. The word is offspring, मतलब यंग वंस, उनके बच्चे. तो दैट इज फिलियल. फिलियल का मतलब होता है प्रोजेनी. सो ये डेफिनेशन टाइप को क्लियर होनी चाहिए. उसके बाद हम जाएंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस. व्हाट आई से, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्योर? तो आपको न्यूमेरिकल में ऐसे पूछ सकते हैं कि कोई कैरेक्टर है वो प्योर है, तो आपको समझ लेना है प्योर मतलब हाइब्रिड नहीं है. ठीक है, दोनों सेम है, आइदर दोनों कैपिटल टी और स्मॉल टी. सो दैट इज प्योर. होमोजाइगस दे आर नॉट हाइब्रिड. सेम जैसा ये, लेकिन homozygous again same, they are very specific. Heterozygous,
capital T, small t. So that is heterozygous. And what is P? That is for parent. What is F? That is filial. Filial का मतलब होता है offspring, उसका मतलब होता है progeny. So this is about basic terminology. अब हम जाते हैं law of dominance. Is there any difficulty in that terminology? समझने में पूछेंगे नहीं, आपको मतलब समझना है. फिर आपको डायरेक्ट बोल देंगे इट इज होमोजाइगस, इट इज हेटेरोजाइगस, इट इज प्योर. तो तब आपको समझना है कि प्योर का मतलब क्या था. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होमोजाइगस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेटेरोजाइगस. एट द टाइम यू नीड टू अंडरस्टैंड. तो जाऊं मैं आगे. Yes, ma'am. Yes, teacher. Yes, teacher. Yes, teacher. सारी चीजें आपको आगे जाके समझ में आएगी. व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ द टर्मिनोलॉजीज. क्योंकि एक वर्ड ऐसे वैसे करके भी आपको न्यूमेरिकल पूछ सकता है and they will confuse you. We will practice हम numerical की practice भी करेंगे तो you will get a more idea. चलो, now law of dominance. अब देखो मेंडल ने क्या किया था. मेंडल ने क्या किया पहले, आपको एग्जैक्टली ऐसे आपकी नोटबुक में लिखना है. The way I'm writing. मेंडल ने फर्स्ट टाइम क्या किया था, ऐसा मान लेते हैं कि मेंडल ने पहले प्योर कैरेक्टर लिए थे. पैरेंट प्योर मतलब they are not the hybrid. तो he took parent और कैसे मतलब प्योर. तो एक जो था वो टॉल प्लांट, और ऐसे क्रॉस अगर मैं करूं तो उसका मतलब होता है कि हमने फर्टिलाइजेशन करवाया दोनों के बीच. और किसके साथ करवाया, ड्वार्फ प्लांट. दैट इज ड्वार्फ प्लांट. ठीक है. अब टॉल प्लांट प्योर हमें ये मान लेना है. ठीक है कि मेंडल ने जो लिया था वो प्योर लिया था, टॉल प्लांट. तो मैं इसके लिए कैपिटल डालती हूँ. ठीक है. और ड्वार्फ प्लांट के लिए स्मॉल. अब देखो जैसा मैंने आपको बताया कि अकॉर्डिंग टू मेंडल जैसे मैंने आपको बताया कि अकॉर्डिंग टू मेंडल देयर आर टू अल्टरनेटिव्स ऑफ द जीन, है ना, दो अल्टरनेटिव, और दोनों कभी साथ में नहीं रहते हैं. उसमें से एक एक्सप्रेस होता है, एक नहीं एक्सप्रेस होता है. लाइक हमारे जैसा कि अगर दो भाई बहन है तो दोनों में से एक थोड़ा वो होता है, मतलब उसको क्या बोलेंगे, जबरा टाइप, है ना. और एक जो होता है वो कैसा होता है, बेचारा नरम होता है. तो जो वो सॉलिड है उसको बोलेंगे डोमिनेंट, और जो नहीं है उसको बोलेंगे रिसेसिव. एक्जेक्टली लाइक दैट वे. तो जो एक्सप्रेस हो रहा है वी कॉल इट डोमिनेंट, और हमेशा वो कैपिटल लेटर से लिखते हैं. तो यहाँ पे टॉल प्लांट, ड्वार्फ प्लांट. टॉल प्लांट कैसा है वो, दैट इज डोमिनेंट. और ये हमें कैसे पता चला था, बाय वेरियस एक्सपेरिमेंट. तो हमें ये मान लेना है टॉल प्लांट एंड ड्वार्फ प्लांट. अब देखो उसको क्रॉस कैसे करवाएंगे, उसको हम बोलेंगे प्यूनेट स्क्वायर. वी कॉल इट प्यूनेट स्क्वायर. ओके. प्यूनेट स्क्वायर में क्या होता है, सी अभी स्टार्टिंग पीरियड है तो आपको ऐसे ही करना है, क्रॉस कैसे करना है. और ये चीज आप करके देखना अपनी नोटबुक में, तभी आपको आएगा. एक तरफ कैपिटल टी टी, एक तरफ स्मॉल टी, और यहाँ पे मैं ऐसे कर रही हूँ. तो एक तरफ आई विल राइट मेल और एक तरफ आई विल राइट फीमेल. तो दिस आर द सिंबल. तो वंस एनीवन आई कैन टेक मेल एंड एनीवन कैन आई टेक फीमेल. तो मैंने यहाँ पे डाला. अब आपको कैसे उसको क्रॉस करवाना है, सी ध्यान से देखना. दिख रहा है ना आपको, Yes. हाँ. Yes, ma'am. एक बार देखना. Yes, ma'am. यस. ये एक आपको लेना है, यहाँ से आपको लेना है, यहाँ एक लेना है, यहाँ से आपको एक लेना है. तो कैसे मैं लिख रही हूँ, और व्हेनेवर हम इसको करवाएं तो डोमिनेंट आगे लिखेंगे, कैपिटल आगे लिखेंगे. तो पहले दिस वन एंड दिस वन. तो यहाँ पे 1 एंड 1. तो देखो यहाँ पे मैं 1 2 लिखती हूँ, यहाँ पे ए और बी डालती हूँ जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन. तो 1A 2A 1B 2B लाइक दैट वे. तो यहाँ पे कैसे मैं लिखूंगी, कैपिटल टी स्मॉल टी, दिस सेकंड 2 एंड A, कैपिटल टी स्मॉल टी, दिस एंड दिस. सेकंड यहाँ पे व्हाट आई विल राइट, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी. आई होप ये आपको समझ में आया कैसे मैंने ये स्क्वायर डाला. आई होप यू गॉट. यस एग्जैक्टली आपको साइड पे ऐसे लिखना है इन योर नोटबुक. ठीक है, नए पेज पे ऐसे लिखना है एग्जैक्टली.
तो ये जो आपका रिजल्ट आया तो आप यहाँ पे डालोगे F1 जनरेशन। F का मतलब क्या होता है? व्हाट आई से? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ F जनरेशन? First generation. नहीं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ F? Filial फिलियल। offspring. यस, फिलियल। देखो यहाँ पे सब सेम है, सारे जो ऑफस्प्रिंग आए दे आर सेम। तो यहाँ पे मैं डालूंगी कैपिटल टी स्मॉल टी 100%। जो चारों के चार जो बच्चे आए वो कैसे आए? टॉल। लेकिन हमें पता है कि दे आर नॉट द सेम, वो लोग हाइब्रिड है, दे आर नॉट होमोजाइगस, है ना? तो देखो ये, अब इसको हम क्या करेंगे? टॉल, ये हमारे टॉल आए थे 100% टॉल। अब उसको हम सेल्फ करेंगे। सेल्फ मतलब अंदर अंदर फर्टिलाइजेशन, अंदर अंदर फर्टिलाइजेशन। तो अगेन हाउ आई विल राइट? यहाँ पे देखो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अगेन वन इज मेल एंड वन इज फीमेल। तो चलो लिखाओ, कैसे लिखूंगी मैं? 1 and 1 क्या आएगा यहाँ पे? फर्स्ट Capital T, capital कैपिटल टी, T. क्या सेकंड? Capital T, Capital small T, t. small t. कैपिटल टी स्मॉल टी। अब नीचे ये दो, Capital T, small t. लास्ट दिस टू। Small t, small t. Small t, small. तो सी हमें रिजल्ट कैसा मिला? तो यहाँ पे F2 आपको ऐसे ही लिखना है सीधा, और साइड में ही आपको दिखाना है कैसे आपने किया। तो सीधा F2, हाउ आई कैन राइट? कैपिटल डी कैपिटल डी कैपिटल डी स्मॉल डी कैपिटल डी स्मॉल डी, एंड दिस रिजल्ट आई गेट। ओके, तो ये टॉल, ये टॉल, ये तीन हमारे टॉल आए और ये शॉर्ट आए। Whenever capital letter is there, capital will be expressed और उसको डोमिनेंट बोलेंगे। अब देखो दो चीज ध्यान से सुनना, इट इज वेरी बेसिक। यहाँ पे दो रेशियो आएंगे, फर्स्ट वन इज फिनोटिपिक रेशियो और सेकेंड वन इज दैट इज जीनोटिपिक रेशियो। अब दोनों का डिफरेंस समझो, व्हाट इज जीनोटिपिक एंड व्हाट इज फिनोटिपिक। जीनोटिपिक का मतलब होता है कि व्हाट इज द जीन स्ट्रक्चर, दे आर होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस, दैट इज कॉल्ड जीनोटिपिक। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिनोटिपिक? हाउ दे लुक, उसको बोलेंगे फिनोटिपिक। अब देखो ये टॉल, ये टॉल, ये टॉल, है ना? ये टॉल, ये टॉल, ये टॉल, तो तीन टॉल है चार में से। तो व्हाट इज द फिनोटिपिक रेशियो? 3:1. यस, इट इज 3:1, क्योंकि तीन टॉल है, एक फिनोटिपिक लुक वाइज, फिनोटिपिक लुक वाइज कैसे वो दिख रहे हैं, और जीनोटिपिक दे आर होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस। तो देखो यहाँ पे एक सेम है, दो सेम है और ये के है। तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ जीनोटिपिक? 1. 1:2. 1:2:1. 1:2:1. Yes, तो आपको exactly like that way you need to write in your notebook. And what is the law of dominance? ध्यान से देखना, what is the law of dominance? Law of dominance is that, okay, whenever there are two alternatives of the genes, कि कोई एक जीन के अगर दो अल्टरनेटिव हो, ठीक है, तो कोई एक एक्सप्रेस होगा, उसको डोमिनेंट बोलेंगे। तो दैट इज द लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो देखो यहाँ पे भले ही हेटेरोजाइगस है, हेटेरोजाइगस मतलब दो अलग है, तो वहां पे जो कैपिटल है वो एक्सप्रेस होगा, मतलब जो डोमिनेंट होगा वो एक्सप्रेस होगा। दिस इज द लॉ ऑफ डोमिनेंस। आई होप दिस इज क्लियर, लॉ ऑफ डोमिनेंस। Yes. આખું ક્લિયર થયું? Yes, teacher. યસ, આખું ક્લિયર થયું? Yes, teacher. Yes, now Teacher. now second law is that, okay, law of segregation. Now see, try to understand the word law of segregation. Segregation का मतलब होता है to segregate, to separate from the each other. तो सेम एग्जांपल आपको डालना है, सेम टू सेम एग्जांपल। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में डिफरेंस कहाँ पे आएगा? यहाँ पे देखो, क्योंकि पैरेंट में क्या था? ये दो था, पैरेंट में ये दो थे, बट ड्यूरिंग जाइगोट फॉर्मेशन दे सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर, दे डिवाइड फ्रॉम ईच अदर। जाइगोट में एक मेल में से आया, एक फीमेल में से आया, दोनों साथ में कभी नहीं जाते, वो एसेक्सुअल में होता है। वी आर टॉकिंग अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो एक ही आएगा, एक फादर में से एक मदर में से। तो ड्यूरिंग द जाइगोट फॉर्मेशन दैट जीन्स, द पेयर ऑफ जीन्स, they segregate from each other. I hope it's clear. Yes, teacher. तो ये Yes, चीज ma'am. आप खुद भी अपने वर्ड में डाल सकते हैं। It is not necessary to write a bookish language.
So again I repeat, law of dominance. What is the law of dominance? कि whenever there are two alternative of genes, whatever gene is expressed, it is called dominant. और जो express नहीं हुआ, that is called recessive. Yes or no? Yes. And what Yes. is segregation? Segregation समझो. What is segregation? During zygote formation. Zygote मतलब ये वाला, ये जो offspring बन रहे हैं. During zygote formation, okay, whatever genes they are found in pair, they segregate from each other. So that is the second law, law of segregation. और ये जो दोनों law है, they are monohybrid experiment. Monohybrid मतलब कि only one character is क्या बोलेंगे, focused during his experiment. तो यहाँ पे height का focus किया था, only one. So they both experiment are included in monohybrid experiment. दोनों में सेम चीज डाली है. मुझे बताओ आपने कैसे लिखा. Show me your book. Show me your book how you wrote this all the experiment. या फिर मुझे भेजना कि कैसे आपने नीट एंड क्लीन एक पूरे पेज पे लिखा है. लाइक दैट वे. यहाँ पे एक लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो. यहाँ पे ये चीज, दो चीज दिखाने के लिए. और यहाँ पे डालना टॉल, ड्वार्फ, टॉल, 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 टॉल एंड ड्वार्फ. ड्वार्फ का मतलब होता है शॉर्ट. तो ये चीज आज आपको मुझे ही लिख के भेजनी है. आई विल वेट फॉर योर मैसेज. ओके टीचर, यस दिख रहा. Okay, teacher. लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बोलो ने पाछा. During zygote formation, okay, the genes which are present in pair, the factors which are present in pair, they segregate from each other. અને દીકરા, this definition is not authentic. मुझे बोलू ते समझवा માટે ચાલે, લખવું હોય તો બી વાંધો નહીં, કોઈ રોંગ નહીં આપે. કદાચ બુક નું વર્ડ આમ તેમ થાય, પણ this is also right. During zygote formation, the genes, the factors which are present in pair, they segregate from each other, they divide from each other. એટલે zygote માં બે માંથી એક જ આવે ને, એક આમાંથી ને એક આમાંથી. So they segregate from each other. I hope this is clear. Yes, ma'am. Yes, teacher. Yes, ma'am. Okay. I think Right. yes, આપણો ટાઈમ બી પતવાનો બરાબર. અને પાછો મારો બેક ટુ બેક બીજામાં ક્લાસ છે. So I'm going to finish this class અને રેકોર્ડિંગ બંધ કરું છું. કે પૂછવું હોય તો પૂછજો.